तो हाँ। उनके उनके ग्रैंडसन है ये, और ही इज फ्रॉम दैट आदित्य बिल्डर्स। हाँ, तो ये इन्होंने जस्ट एक वेंचर क्या है, एक आप जो है समझ सकते हैं, जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप उन्होंने शुरू किया है, और उसमें लाइक माइंडेड पीपल को इन्होंने ऐड किया है, वी कनेक्ट करके। तो द एम ऑफ दिस ग्रुप इज बेसिकली टू सपोर्ट ईच अदर, हाउ वी कैन लाइक हेल्प ईच अदर इन डूइंग देयर बिजनेस। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप। और इसमें इन्होंने एक नॉमिनल फी भी रखी है, रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपीज की फीस रखी है इन्होंने, जस्ट टू लाइक जो भी ये वेबिनार्स करते हैं या जो भी जो प्रोग्राम्स करते हैं, एटलीस्ट उसका जो एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाए। कोई इसका प्रॉफिट का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट जस्ट लाइक सपोर्ट करने के हिसाब से वो जो एक्सपेंसेस से कर रहे हैं एटलीस्ट वो कवर हो जाए, तो ये रीजन है। और नितेश जी, मैं सिर्फ 2 बातें ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, हम अभी फ्यूचर में वेबिनार ऐप बनाने वाले हैं और वेबसाइट बनाने वाले हैं। ओके। और एवरी मंथ नियरली 100 लोगों का मीटिंग रहेगा। ये जो चार्जेस है वो उसके लिए भी है। राइट। नहीं तो अपन ऑफलाइन भी कुछ प्लान कर रहे हैं क्या चेतन जी, या ऑनलाइन ही रहेगा सारा ये? जी, लाईट बिल सिमरन मधून आणि दादाचं लायसन्स. नितेश जी, ये फिर आपका ये फर्स्ट टाइम जो चेतन जी शुरू कर रहे हैं, ये फर्स्ट वेबिनार है? नहीं, ये ऑलरेडी 4 या 5 वेबिनार हो चुके हैं। ये 5th वेबिनार है। 5th वेबिनार है ये। चेतन जी ये बेंगलोर से जुड़े हैं अपने, ये जितेश जी जो है, ही इज बेस्ड इन बेंगलोर। अर्लियर ही वाज इन पुणे ओनली, और रिसेंटली वहां शिफ्ट हुए हैं ये, तो वहां से जुड़ रहे हैं ये। नितेश जी, मैं आपको एडमिन बनाता हूँ, आप सबको ऐड कीजिए ग्रुप में। हाँ ठीक है।
जो लोग वी कनेक्ट के ग्रुप में नहीं है, रिक्वेस्ट है प्लीज आपका नाम नंबर भेजिए। वो चैट बॉक्स में अपना जो भी जुड़ रहे हैं एटलीस्ट चैट बॉक्स में अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर डाल दें, तो जो इस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी अपन जोड़ लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। नितेश जी, आप मुझे होस्ट बना सकते हो? हाँ, मैंने निधि को तो होस्ट बनाया है, मैं आपको भी होस्ट बना देता हूँ। 1 मिनट, को होस्ट बना दिया है मैंने आपको। जयपाल सर वेलकम। जयपाल सर आज के स्पॉन्सर है वेबिनार के। So we'll start in next 2 minutes. Already it is 5:07.
निधि प्लीज स्टार्ट। नितेश जी शुरू करिए अभी। A very good evening to everyone. Thank you so much for joining our today's webinar. The topic of our today's webinar is e-commerce business and unlimited opportunities associated with it. I'm sure this webinar is definitely going to be very informative and full of learning. But before we start our today's webinar, I would like to thank our today's sponsor, Jaipal Furniture and Mr. Sujay Bagmar for their kind gesture and helping us make this webinar possible today. Thank you so much, Mr. Sujay Bagmar. We genuinely appreciate your kind gesture. Let me introduce you to our today's guest speaker. Our today's guest speaker is none other than Mr. Nitesh Kataria. He is a marketing professional based in Pune city. Mr. Nitesh Kataria has completed his engineering in the year 1995 from MBM Engineering College, Jodhpur. He also holds master's degree in management science in sales and marketing from Devi Ahilya University, Indore. He has worked at senior positions in few of the world's renowned engineering MNCs like Gates India, Eaton Fluid Power, Faster Hydrolysis, etc. His 25 years of professional experience includes business development, e-commerce business, sales and marketing, digital marketing, branding, and distribution channel management. He is also the co-founder of Sanskriti Objects Dart, an online platform for Indian handicrafts and gifting solutions. Mr. Kataria enjoys blog writing, networking, and reading. Wow, the work you have done is commendable. The time and energy you have invested in your professional life is impressive. I am looking forward to this webinar. I request Mr. Nitesh Kataria to please take the lead. Thank you, Nidhi ji. So nice of you for introducing me for this webinar. I am just sharing my screen. I hope you could able to see my screen. Yes. Okay, thank you. So today's topic of e-commerce business, unlimited opportunities. I will be conducting this webinar in Hindi as well as in English, so that it can reach to all of you. E-commerce basically it's a very wide subject. और पिछले अगर मैं कुछ सालों की बात करूं, कुछ 5, 6, 7 सालों की बात करूं, तो जो डायमेंशन है, जो लैंडस्केप है ई कॉमर्स बिजनेस का या फॉर दैट मैटर बिजनेस का, इट हैज चेंज ड्रास्टिकली. इस वेबिनार में मैं बहुत आपका टाइम नहीं लूंगा. इट विल बी ऑफ लाइक 45 मिनट्स एंड आई वुड लाइक टू हैव दिस वेबिनार एज इंटरेक्टिव सेशन. नॉट इट शुड बी ए लाइक वन वे कम्युनिकेशन. कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे. बेसिकली इट शुड बी ए टू वे कम्युनिकेशन. जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या एट द एंड ऑफ द सेशन आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊं. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी मोबाइल या जो भी डिवाइसेस जिस पे आप काम कर रहे हैं, आप उसको म्यूट मोड पे कर देंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आपके यहाँ की जो वॉइस है वो यहाँ तक सब लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें. ई कॉमर्स की जहां तक बात है, पिछले अगर मैं बात करूं 2020 मार्च 2020 जब इंडिया में या वर्ल्ड जब लॉकडाउन आया था और जब कोविड का इम्पैक्ट आया था, और पिछले 1.5 साल से अपन उस कोविड से अपन कोविड का जो इम्पैक्ट है वो अभी भी हम फेस कर रहे हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा चेंज जो आया है वो बिजनेस के ऊपर आया है.
आप देखिए कि कई ऐसे बिजनेस जिनका आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टेंस है वो भी एक डेंजर में है. दे आर नॉट एबल टू डू बिजनेस बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. लॉकडाउन, शॉप्स वर क्लोज्ड, बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी. लेकिन इस 1.5 साल में जो सबसे ज्यादा किसी ने ग्रो किया है, जिस बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो वो मैं कह सकता हूं कि एक ई कॉमर्स बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है. मैं आपको जस्ट लैंडस्केप कैसे चेंज होता है, मार्केट सेगमेंट कैसे चेंज होता है, मार्केट परसेप्शन कैसे चेंज होता है, एक जस्ट मैं आपको एक स्लाइड बताता हूं जो प्रूव करेगा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. आप 20 साल पहले अगर आप जाते हैं या 30 साल पहले जाते हैं तो जो कंपनीज बेसिकली जो रूल कर रही थी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रूल कर रही थी. आप 80s की बात करें, आप 90s की बात करें. आफ्टर दैट देयर वाज लाइक कंप्लीट चेंज. आईटी इंडस्ट्रीज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसने इंडिया में या वर्ल्ड में जो है 90s के बाद 95 से लेके आप ऑलमोस्ट फॉर 10 years it was like IT and software. Then BPOs का सेगमेंट रहा था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा एक बिजनेस सेक्टर इंडिया में आया. 2010 के बाद आप देखिए कि एक जो स्टार्टअप की बात करें या एक ई कॉमर्स से रिलेटेड कंपनीज की बात करें, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, तो काफी कुछ कंपनियां जो है उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया. और प्रोफेशनल्स जो पहले सोचते थे कि हम पीएसयू कंपनी में काम करेंगे, हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, वो उनका जो माइंड सेट था वो शिफ्ट हो गया. एंड दे स्टार्टेड लाइक टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप कंपनीज एंड दे स्टार्टेड इन वर्किंग इन दिस स्टार्टअप कंपनीज आल्सो. मतलब आईआईटी और आईएम करने के बाद में वो कोई स्टार्टअप कंपनीज में अपना जॉब उन्होंने शुरू किया. और there are so many examples. आप देखते हैं कि ई कॉमर्स के लैंडस्केप में इतने एग्जांपल्स है जहां पे कि आप देख सकते हैं कि 4 साल, 5 साल, 6 साल में उन्होंने कंपनी को एस्टेब्लिश किया. एंड दीज कंपनीज आर रनिंग लाइक एनीथिंग. सो जस्ट एक मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं. आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे. 2009 और 2019 में क्या डिफरेंस है. 2019 में आप देखिए कि एक हेलीकॉप्टर में एक साहब जो है फोटोग्राफर अपना कैमरा लेके शूटिंग कर रहा है. और सेकंड में आप देखेंगे कि उसकी जगह ड्रोन आ गया है और उसमें कैमरा भी फिटेड है. तो न तो पायलट की जरूरत है, न आपको कैमरामैन की जरूरत है. सो इन दोनों का जो है जॉब चला गया. इन 10 years आप देखते हैं जो चेंजेस हुए हैं उसका एक एग्जाम्पल है. तो इसीलिए कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. चेंज इतना जो आप देखते हैं कि जो मतलब हेलो, will you please mute your phone, Hemant Tripathi? So basically the rate of change is very fast. जो काम पिछले 20 साल में या 15 साल में नहीं हुआ है वो हो सकता है आपका 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा. और उस चेंज को अडॉप्ट करना बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चुनौती है कि आप उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं. और एक्सेप्ट करने के साथ साथ सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है उसको अडॉप्ट करने का है. आप उस चेंज को कैसे अडॉप्ट करते हैं. अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आपके बिजनेस अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट बिकॉज कंपटीशन इज फियर्स, कंपटीशन इज वेरी हाई. अगर मैं एक सर्वे की बात करूं, एक जो रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देखते हैं कि जो भी बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं 95% ऑफ दोस बिजनेसेस आर फेलियर. वो विद इन 3 years 95% बिजनेस जो है बंद हो जाते हैं. सो बिजनेस करना इट्स नॉट दैट इजी. कंपटीशन इज देयर, प्राइस वॉर इज देयर, टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग लाइक एनीथिंग. अगर आपको अपग्रेड होना है तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो है चलना होगा. अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो बात आती है कि ई कॉमर्स बिजनेस का. मैं एक बढ़िया कोट मिस्टर
बिल गेट्स का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उनका कहना है कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। आप में से कोई इस सेंटेंस या जो कोट है उसको एलेबोरेट कर सकता है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप उसको बता सकते हैं, इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, कोई भी, एनीवन फ्रॉम योर साइड। जितेश जी। हाँ, so नितिश जी, आई थिंक इट्स रियली वेरी नाइस कोट। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जो भी अभी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसको इंटरनेट पे नहीं ले जाओगे तो वो आपका बिजनेस नहीं है रियल सेंस में। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट जितेश जी। बड़ा एक ये जो स्टेटमेंट है, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट बेसिकली कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर अपने बिजनेस को, अगर आप अभी भी कोई ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई शॉप है या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आप अगर उस बिजनेस को अगर इंटरनेट पे या ई कॉमर्स पे आप लेके नहीं आते हैं तो it will be like I can tell you very surely that within 2 years, 3 years or 4 years you will be out of that business. Yes, Chetan ji Somani, you wanted to say something? Chetan ji? Okay, so the thing is, अगर आपने अपने बिजनेस को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आपने उसको नहीं आप कर पा रहे हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दैट बिजनेस। क्योंकि आज मैं आपको रीजंस देता हूं। इन नेक्स्ट स्लाइड्स आई विल शो यू सम फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स जिससे आपको मालूम चलेगा कि ये जो फ्यूचर है, व्हाई दिस फ्यूचर इज गोइंग टुवर्ड्स द डिजिटल, व्हाई दिस फ्यूचर इज फॉर द इंटरनेट बिजनेस, व्हाई दिस फ्यूचर इज फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस। मैं आपको एग्जांपल और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको एग्जांपल दूंगा। अपने को कोई बाहर कंट्री नहीं देखना है, यूरोप में क्या हो रहा है या यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, ये आप अपने आप खुद भी देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे फिगर्स रख रहा हूं, वो आप देख सकते हैं, आप उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं कुछ आपको ब्रांड्स शो कर रहा हूं। आप आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट दीज ब्रांड्स। बिग बास्केट, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन सुपरमार्केट। आई डोंट थिंक कि 2 साल या 3 साल पहले इस ब्रांड को कोई जानता होगा। नाउ दिस कंपनी इज पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है और वो टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई है। जोमेटो का रिसेंटली 2 महीने पहले इसका आईपीओ आया था एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। ओपनिंग जिस दिन लिस्टिंग हुआ था, उस दिन लिस्टिंग के दिन ही उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, आप मान सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑटोमोटिव सेक्टर, महिंद्रा और बजाज का दोनों का मिला के जो मार्केट शेयर था या मार्केट वैल्यूएशन था, उससे ज्यादा इस कंपनी ने डे 1 पे जब इसका ओपनिंग हुआ था आईपीओ का, उसका वैल्यूएशन इस कंपनी का आप देख सकते हैं कि एंड दिस कंपनी इज व्हाट दिस कंपनी लोकेश जी, विल यू प्लीज कीप योर मोबाइल ऑन द म्यूट मोड। सो द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट कंपनी which this company is in loss, this company is not making any profit, but despite of that the market cap of that company was more than the market cap of Mahindra and Bajaj put together. So you can see the strength of this brand, the strength of this market. What Zomato is doing, they are doing nothing. Basically it is a service provider. They are not manufacturing anything. They are they have just created a market for the buyers and the seller, and they are just enjoying the you can say the margin, brokerage they are getting from the sellers. This is the company, this company is doing that thing. So Zomato, then Ola, you see the Ola, the strength of this brand. ओला ने अभी रिसेंटली आई थिंक 6 या 5 दिन पहले इन्होंने अपना जो एक स्कूटर को लॉन्च किया है,
they are going to manufacture this e-scooter also, and within 2 days the booking of this scooter was in the value of that sale was 1100 crore rupees. In 2 days they like booked scooters worth rupees 1100 crore. So you just think 5 साल पहले या 6 साल पहले Ola was nothing, but in last 5-6 years they have created this. Paytm, big brand, everybody is like, आपने देखा होगा कि जब कोरोना में जिन्होंने कभी पेटीएम यूज नहीं किया होगा, जिन्होंने कभी डिजिटल का जो है प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया होगा, दे आर आल्सो यूजिंग दिस पेटीएम फॉर्मेट। और आप देखते हैं कि वो जो सब्जी वाला है या जो एक स्मॉल कुली भी है, दे आर आल्सो यूजिंग दिस पेटीएम टू ट्रांसफर द मनी एंड टू एक्सेप्टिंग द मनी। सो यू कैन सी द परसेप्शन व्हिच हैज चेंज इन रीसेंट ईयर। आज से 2 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि बिना पैसे दिए हुए या लेन देन किए हुए, कैश का लेन देन किए हुए कोई काम हो पाएगा, लेकिन पेटीएम ने वो प्रूव कर दिया है कि वो काम हो सकता है। एंड देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक पेटीएम। पेटीएम इज वन ऑफ द दैट प्लेटफॉर्म, there are so many Google Pay and there are so many. So then we have this Flipkart. They started as a bookseller, online bookseller, almost 10 years back, and now they are having almost 30% market share in the Indian market. After Amazon, the Flipkart is at number 2. Then Swiggy, just like Zomato, Swiggy is also in the same segment. They are just foods in the business of food delivery. They are also doing quite great job. 1mg is again जो फार्मास्यूटिकल्स या जो मेडिसिन की सप्लाई के लिए 1mg ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और 1mg इज आल्सो पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। इसमें भी टाटा ग्रुप की जो है स्टेक है। सो 1mg इज आल्सो डूइंग क्वाइट गुड। बायजूस, आप देखिए कि पिछले 1.5 साल में जब से लॉकडाउन हुआ है, तो एवरीबडी जो आप देखते हैं, जो कोचिंग क्लासेस में बताता हूं कि कोटा की आपने देखा होगा कि एवरीबडी यूज्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू कोटा फॉर द कोचिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंड engineering medical basically. So like Kota was like factory to manufacture all these engineers and doctors, and for IIT and for NIT and medical colleges. लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हैं कि वो इंडस्ट्री बहुत बड़े खतरे में आ गई है, क्योंकि अब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां नहीं भेजना चाहता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न, बिकॉज ऑफ दिस कोविड इश्यूज। सो जो वो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं कोटा या दूसरे सेक्टर्स में, चाहे वो है हैदराबाद की इंडस्ट्री हो या दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वो सारे आप शिफ्ट होके आप बायजूस जैसी कंपनी में आप देखेंगे कि बायजूस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन सब कोचिंग हो गया या स्टूडेंट्स के लिए जो है बच्चों को पढ़ाना ऑनलाइन। सो बायजूस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब। 5 साल पहले, 6 साल पहले, मतलब मेरे को लगता है कि फ्लिपकार्ट को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों जो बाकी के ब्रांड्स है, वो आई थिंक 5 साल पुराने ब्रांड भी नहीं है, बट दे हैव क्रिएटेड दे हैव क्रिएटेड फ्रॉम जीरो एंड नाउ दे आर रूलिंग द बिजनेस। आप देख सकते हैं कि आप सुबह अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब आपका दूध आता है तो बिग बास्केट वाला आपको दूध डिलीवर कर रहा है। और जोमेटो आप देखिए कि जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी सिंगल्स रह रहे हैं, या फॉर दैट मैटर एवरी फैमिली, दे आर हैविंग दिस जोमेटो एंड स्विगी ऐप ऑन देयर मोबाइल, एंड एवरीबॉडी इज लाइक जस्ट बाय simply clicking the mobile or app, they are just ordering for the food and everything has changed. Ola is also doing the same thing. मेरा कहने का मतलब है कि जो लैंडस्केप चेंज हुआ है, जो चेंज पिछले 5 साल में आए हैं, लगता है वो चेंजेस 25 साल 30 साल में भी नहीं आए हैं, जो चेंजेस 5 साल में आए हैं। अगेन टेक्नोलॉजी, आप देखते हैं इन सब जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी मैंने आपको ब्रांड्स बताए हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत 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 बड़ा रोल है। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके दे हैव क्रिएटेड दिस बिजनेस एंड दे आर रनिंग दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप, क्या ये आसान है, या कोई भी जो बंदा जो है इस बिजनेस को कर सकता है,
या इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है? क्वेश्चन का आंसर यस भी है, नो भी है। क्यों यस है या क्यों नो है, मैं आपको कुछ फिगर्स के साथ नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करता हूं। उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर we would like to have our business on the online platform or not, because just like any other business, competition will be there. It is not that it is competition free business. Competition will always be there, and every day the competition is getting fierce. It is not that like it's very easy thing और कोई भी enter करके इसको business में successful हो सकता है। You need to have patience. You need to put your 100% in that venture. You have to have a discipline. Only after that one can get some success on this platform or on this business. So जो मैं बात कर रहा था, जो मैं आपको जो ये ब्रांड्स मैंने जो आपको शायद शेयर किए, ऐसे 10, 15, 20, 50 और भी ब्रांड्स होंगे, लेकिन मेरा इन ब्रांड्स को शो करने का एक ही रीजन था कि आप देख सकते हैं कि जो लैंडस्केप है पिछले 5 साल में वो चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए स्पेस कम होता जा रहा है, और उस ट्रेडिशनल बिजनेस का जो स्पेस है, दैट स्पेस इज गेटिंग फिल्ड बाय this startup, this new generation companies which are like run by a 24 years old person or 25 years old person, or maybe in case of Oyo, I have not written that brand Oyo, the Ritesh Agrawal, he started his business at the age of 17 or 18 years. He's a college dropout, but again he has created a history, and Oyo is a world renowned brand. So this is the situation of today's business. और उस बिजनेस में जो पाई है, बेसिकली जो बिजनेस का जो शेयर है, उसको आपको ग्रैब करना है। उस बिजनेस को ग्रैब करने के लिए आप तो क्या कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सो नाउ आई कम टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई टू गो फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और कौन सी कंपनीज या कौन से सेक्टर्स जो है इसमें रूल कर रहे हैं। और आपको ई कॉमर्स बिजनेस, आप जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस आज कर रहे हैं, चाहे वो अपना आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, आपकी कुछ सर्विस इंडस्ट्री हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप मैनेजमेंट मार्केटिंग के कंसल्टेंट है, आप एडवोकेट है, कोई भी सर्विस है या कोई भी आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम ई कॉमर्स बिजनेस में क्यों जाएं, व्हाट आर द उसमें क्यों इतना ल्यूक्रेटिव है, या उस बिजनेस में जाने में हमको क्या फायदा है। तो कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है, जो these figures are very relevant, and these figures are like sourced from a reliable contents are very reliable. So आप एक ही मेरे पैराग्राफ जस्ट मैं ग्राफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंटरनेट पेनिट्रेशन परसेंटेज, ये 2007 से 2021 का डेटा है। ये इंडिया का डेटा है, इंडिया का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि 2007 में जो एक इंटरनेट पेनिट्रेशन था इंडिया में, इट वाज 4%, एंड इन 2021 इट हैज गॉन टू 50%। और जो डेटा है, जो फोरकास्ट है, उसमें आप समझ सकते हैं कि अगले 3 और 4 साल में दिस इंटरनेट पेनिट्रेशन विल बी एटलीस्ट 75 to 80%। इससे क्या एडवांटेज है? इससे एडवांटेज ये है कि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में चाहे वो बड़ी सिटी है, मेट्रो है, मिनी मेट्रो है, विलेज है, या एक दूर दराज का भी कोई सा भी एरिया है, वहां पे आज की तारीख में इंटरनेट अवेलेबल है। अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो डेफिनेटली वहां के जो है लोग, उनके पास मोबाइल भी है, उनके पास लैपटॉप भी है, एंड दे आर एक्सेसिंग द इंटरनेट। इंटरनेट आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में इंटरनेट की जो कॉस्ट है, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट कॉस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत चीप है, बहुत सस्ता इंटरनेट है, थैंक्स टू लाइक जियो, रिलायंस ने जो एक रिवोल्यूशन लेके आए हैं इस सेक्टर में, उसके कारण हर बंदा या हर हिंदुस्तान का व्यक्ति वो एक इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन डिजिटल इंडिया।
वो खुद जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है कि जितना मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन होगा या जितना लोग इंटरनेट से जुड़ पाएंगे उनका वहां पे एफर्ट्स रहता है। सो वन ऑफ द रीजंस जो कि ई कॉमर्स के लिए फेवरेबल है, दैट इज द इंटरनेट पेनिट्रेशन। सेकेंड बात मैं करता हूं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक यूथ के पॉपुलेशन है, इट इज इन इंडिया। आप देखते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि इस जो ग्रुप में जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं उनका एवरेज एज क्या है, बट आप देख सकते हैं कि जो 20 से 25 या 30 साल की एज के जो यूथ हैं, they would like to do their entire work on laptop or on the mobile. They don't want to go out to purchase something. उनके पास ना तो टाइम है, ना उनके पास इतना पेशेंस है कि कोई मार्केट में जाके वो चीज को परचेज करेंगे। हाँ, कोई स्पेशल प्रोडक्ट है तो अलग बात है, बट इन फॉर कॉमन थिंग्स दे वुड लाइक टू परचेज ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। उनके पास टेक्निक भी है, उनको मालूम है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे सस्ता कहाँ पे मिलेगा, उसको हमको कैसे प्रोक्योर करना है, किस टाइम पे हम उसको ऑर्डर देंगे कि हमको ये सेल में सस्ता मिल जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 30 to 40 करोड़, दे आर लाइक एक जो आप बोलते हैं कि मैच्योर एक पॉपुलेशन है, जो एक कस्टमर बेस है 30 से 40 करोड़ लोगों का, वो एक तैयार मार्केट आपके पास है उसको एड्रेस करने के लिए। ये जो एक एज ग्रुप के लोग हैं वो बहुत कम प्रेफर करेंगे अपने प्रोडक्ट को, या कोई भी उनको परचेज करना है तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी ऑनलाइन। नाउ थर्ड थिंग इज, एक जो रिसेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि एक जो बहुत बड़ा चेंज हुआ है ई कॉमर्स परचेजेस में, वो पहले आपको कोई भी अगर चीज या कोई सर्च करना होता तो आप उसको टाइप करते थे। सपोज आपको मोबाइल खरीदना है, या आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना है, या आपको कोई बुक खरीदना है, तो आपको जस्ट उसको टाइप करके उसको परचेज करना पड़ता था। तो एक तो ये प्रॉब्लम रहता था कि ऑप्शंस बड़े लिमिटेड थे। आइदर यू कैन राइट इन हिंदी और इन इंग्लिश। प्रोबेबली इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता था, और उसमें जो कीवर्ड्स या जो सर्च इंजन होते हैं वो भी उसी हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन होता था कि आपको, अगर आप बेसिकली उसको इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप हिंदी में है तो उसके जो सर्च के रिजल्ट है वो लिमिटेड आते थे। और बाकी की रीजनल लैंग्वेज तो आप भूल जाइए, रीजनल लैंग्वेजेस में तो आपको प्रोडक्ट का सर्च करना ही बड़ा डिफिकल्ट होता था। बट रिसेंटली एक तो जो लैंग्वेज है उसका भी एक वाइड उन्होंने किया है, जो भी कंपनीज है, गूगल है या जो भी उनका सर्च इंजन से उसको वाइड किया है। सेकेंडली एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो हो गया है, वो है कि आपका वॉइस सर्च का एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फीचर सारी जो जितने भी आप वेबसाइट है या ई कॉमर्स साइट है वहां पे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, एंड दैट फीचर इज वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि अगर किसी को हिंदी में भी बोलना है, या तमिल में बोलना है, या कन्नड़ा में बोलना है, ही विल जस्ट जो है वो केवल बोलेगा कि भाई आई वांट टू परचेज दिस Apple mobile, or I want to purchase this type of apparel, so he just have to say that thing, और उसके हिसाब से वो सर्च में आपको वॉइस के हिसाब से जो है आपको वो सारे ऑप्शंस दे देता था। तो इसके कारण जो मेजर पॉपुलेशन थी जो कि लैंग्वेज बैरियर जिनका था, या जो लैंग्वेज बैरियर के कारण जो है ई कॉमर्स में अपना काम नहीं कर पा रहे थे या परचेज नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक इसको रिमूव किया है, उस हर्डल को, उस बैरियर को। सो दिस इज वेरी सक्सेसफुल, और आने वाले टाइम में इसमें और भी ग्रोथ होने वाला है, और भी इसमें काफी एडवांटेजेस, काफी डेवलपमेंट होने वाला है। आप देखते हैं कि अभी तो आपको अगर कोई टी शर्ट खरीदना है या शर्ट खरीदना है तो आप वो इस टाइप के उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं कि आप अपना जो है चेहरा उसमें लगा के उस शर्ट को पहन के देख सकते हैं कि आप उसमें कैसे लगेंगे। तो इस टाइप के डेवलपमेंट भी हो गए हैं। तो आपको ये नहीं है कि केवल फोटो देख के या आपको उसका वीडियो देख के ही आपको उसको परचेज करना है। Now technology is so advanced that you can see wearing
that t-shirt or shirt in the virtual world, and you can see how you will look. So these are the advantages जो कि बहुत तेजी से हो रहे हैं. Already in other countries it has been implemented, और इंडिया में भी इन पे काफी काम चल रहा है. So this is the third reason. एक और जो बेसिकली जो ग्रोथ होने का रीजन है वो स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है. पिछले, जैसा मैं हर रिपीट कर रहा हूं कि पिछले 1.5 साल में या 18 मंथ्स में जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसके पास मोबाइल नहीं था, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं था, जिसके पास लैपटॉप नहीं था, उन सबको ये सारे गैजेट्स खरीदने पड़े. बिकॉज स्कूल ऑनलाइन हो गया है, आपका बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है. आपके पास अगर ये गैजेट्स नहीं है तो आपके लिए काम करना डिफिकल्ट होगा. सो अवेलेबिलिटी एंड द प्राइसेस ऑफ दीज गैजेट्स हैव आल्सो कम डाउन, काफी कम हो गया है. इसके कारण जो है, जो बेसिकली जो परसेंटेज है, जो हाउस होल्ड जिनमें इन सब चीजों की अवेलेबिलिटी है, वो ऑलमोस्ट आज की तारीख में 50 to 60% हो गया है. तो एक since these gadgets are available, people will would like to go to for the e-commerce or internet purchasing. इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा रीजन मैं मानता हूं, जो कि ई कॉमर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, या जो ई कॉमर्स में जो इतना ग्रोथ हो रहा है, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सप्लाई चेन एंड डिलीवरी. मैं देखता हूं, जैसे मैं पुणे की बात करूं, तो अगर मुझे कोई एक छोटा प्रोडक्ट कहीं देना हो, तो like Dunzo app is available within 2 to 3 hours. They will deliver that products to any location in Pune. रोड्स काफी अच्छे हो गए हैं, कुरियर सर्विसेज काफी हो गई है, और एक पूरा इकोसिस्टम आप देख सकते हैं कि जो एक बिजनेस का इकोसिस्टम होता है रिलेटेड टू सप्लाई चेन, पैकेजिंग, कुरियर, डिलीवरी. सो ये काफी मैच्योर हो गया है. बिकॉज पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां काम कर रही है, तो उसके कारण ये एक इकोसिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि अगर मतलब within 2 to 3 days you can deliver your product anywhere in India at a very economical cost. So that is also a plus point, because आज से अगर मैं 5, 6, 7, 8 साल पहले की बात करूं, तो रोड्स इतने ठीक नहीं थे, हाईवेज नहीं थे. तो ये रोड साइड और जो बेसिकली सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट होने के कारण एक ये एडवांटेज हो गया है कि आपका प्रोडक्ट सेफली और विद इन टाइम लिमिट you can deliver your product to anywhere in India. So ये बेसिकली मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, जो कि ये शो करता है कि आने वाले टाइम में, और दिस इज जस्ट बिगिनिंग, और जैसा मैंने बोला है कि गवर्नमेंट इज आल्सो लाइक दे हैव गॉट फोकस ऑन ऑल दिस थिंग, आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल एंड डिजिटल इंडिया. सो उन सबका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन, उन सबका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पे आने वाला है. सो ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इन फैक्टर्स का रहेगा कि आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आप कैसे आगे बढ़ाएं. तो ये तो मैं आपको रीजंस बताया है कि क्या रीजंस है जिसके कारण आने वाले टाइम में ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो बढ़ने वाला है. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं कि एडवांटेजेस क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं जिसके कारण आपको ई कॉमर्स बिजनेस, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है. सबसे पहला एक एडवांटेज है, वो है रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट. रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो आप कम कर सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लाइक सिंस आई एम बेस्ड इन पुणे, एमजी रोड पे आपने एक शॉप लिया है. एमजी रोड पे अगर आपका आउटलेट है, आप सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में काम कर रहे हैं, वहां पे आपने किसी का डीलरशिप ले रखा है, तो डेफिनेटली एमजी रोड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट लाइक एरिया इन पुणे, और फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन बेंगलोर सेम सिचुएशन इज देयर. सो वहां पे आपको जो रेंटल्स है वो देना है, जो आपको एम्प्लॉइज की सैलरी है वो देना है, अगर आपको
आपने एसी लगाए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देना है, आपको लाइटिंग की कॉस्ट देना है. There are so many expenses related to have your own outlet. कस्टमर है सर, कस्टमर बहुत स्मार्ट हो गया है. कस्टमर जो है आज की तारीख में, they have all the information at their tips in their mobile, they have everything. कस्टमर जाएगा एमजी रोड पे जाएगा या फॉर दैट मैटर जो भी अच्छा शोरूम है वहां पे जाएगा, वहां पे वो जितने भी मॉडल्स है सब देखेगा, किसमें क्या फीचर्स है, किसकी क्या प्राइस है, किसमें क्या एडवांटेजेस हैं, किसकी क्या कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का. वो सारी इंफॉर्मेशन जो वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेटर है जो उस प्रोडक्ट को दिखा रहा है वहां से लेगा. और 2 या 3 जो वो उसने शॉर्टलिस्ट किए हैं प्रोडक्ट या जो भी ब्रांड्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसकी फाइनल प्राइस वहां पे पूछ के आता है. और वो मॉडल का ऑनलाइन चेक करता है कि ये भाई ये ऑनलाइन जो है इस प्रोडक्ट की क्या कीमत है, किस प्राइस पे ये मिल रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है. सपोज किसी आइटम का ऑनलाइन ऑफलाइन में जो शोरूम में कीमत उसकी 31,000 है, and if same model is available in 29,000 somewhere at the e-commerce site, he will just put his order on e-commerce site, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, XYZ हो, ABC है, वो वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है और उस प्रोडक्ट को वो अपने यहाँ मंगवा लेता है. मेरा ये कहना है कि जो एक्सपेंसेस ऑफलाइन में एक रिटेल आउटलेट कर रहा है, वो बेसिकली ऐसे नंबर पे आता है. और जूम मतलब जूम मीटिंग. मयूर, हेलो, will you please keep your gadgets in mute mode please. So मेरा कहने का मतलब ये है कि कस्टमर इज वेरी स्मार्ट, he is having all the information. और अगर उसके पास information नहीं भी है तो Google is everywhere, he will just check all the prices on the Google and he will place the order on online and he will buy the product. So ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है. अभी आप देखते हैं कि जब शॉप्स बंद थी तो एवरीबडी यूज्ड टू लाइक बाय ऑनलाइन, एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर आल्सो. जिसके पास जो नहीं कर सकता है, जो टेक से भी नहीं है, वही जाके ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेज करने वाला है. अदरवाइज जो स्मार्ट जो यूथ है दे विल गो फॉर द ऑनलाइन. So in case of like e-commerce site, location is not that important. You can have your warehouse anywhere near to city, जहां पे कि आपका कुरियर वाला आ सकता है, जहां पे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला आ सकता है, जहां से आप कन्वीनियंटली अपने प्रोडक्ट्स जो है भेज सकते हैं. अगर आपका वो लोकेशन भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे वो सिटी से 15 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, कोई इशू नहीं है. सो यू विल हैव रिड्यूस कॉस्ट. एंड जैसे कहा कि लोकेशन इज नो कंस्टेंट, यू कैन हैव योर ऑनलाइन प्रेजेंस. आप कहीं भी अपना ऑफिस या कहीं भी वेयर हाउस लेके आप अपना वहां से बिजनेस शुरू कर सकते हैं. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस. थर्ड इज ग्लोबल रीच ऑफ योर बिजनेस. डेफिनेटली अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आपका जो एरिया है वो लिमिटेड होगा. अगर कोई हड़पसर में कोई शॉप है तो आई एम नॉट गोइंग टू हड़पसर, कितना ही अच्छा उसके पास प्रोडक्ट हो या कितना ही अच्छा वो कितना ही डिस्काउंट दे रहा हो, तो मैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर उस प्रोडक्ट को मैं परचेज करने नहीं जाऊंगा. बट सेम प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो डेफिनेटली आई विल हैव चॉइस कि भाई मैं इसको जो है ऑनलाइन जाके अगर मैं परचेज कर सकता हूँ तो मैं उसको परचेज करूंगा. और द प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड बाय कुरियर. maybe it may take 2 days, 3 days, 4 days, no problem, but that option is there. So आपका जो बिजनेस है इसका एक बाउंड्रीलेस बिजनेस हो सकता है. आपको अपने आप को कोई कंस्टेंट नहीं है कि हमको पुणे में ही करना है, हमको बेंगलोर में ही करना है, हमको नवी मुंबई में ही करना है या मुंबई में ही करना है. with the presence of your with the online presence you can have your global reach. Fourth, you are available 24/7. आपको आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है 24/7 है, चाहे यूएस में अभी सुबह भी हो रही हो या यूरोप में रात भी हो रही हो, चाइना में
कोई भी टाइम हो रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है। आपका शॉप 24/7 अवेलेबल है। आपके कस्टमर्स किसी भी टाइम पे आके लॉग इन कर सकते हैं, आपके यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप जस्ट पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। डेफिनेटली ई कॉमर्स इज इजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर ऑल। जो सेल कर रहा है उसके लिए भी कन्वीनियंट है, जो परचेस कर रहा है उसके लिए भी कन्वीनियंट है। एंड वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस इज लाइक यू कैन इजीली रिसीव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स। आप देखते हैं आज की तारीख में सारा खेल ही जो है रिव्यूज का हो गया है। आप देखते हैं जो भी आप ई कॉमर्स साइट से, अगर आप अमेजोन पे जाएंगे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो पहले आप देखते हैं कि उसका रिव्यू क्या है, उसको कितना स्टार रेटिंग मिला हुआ है, कितने लोगों ने उसको परचेज किया है, या जो फीडबैक है उस प्रोडक्ट के बारे में वो कैसा है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल अगेंस्ट द दैट प्रोडक्ट। जहां पे आपका प्रोडक्ट है उसमें ही सारे रिव्यूज दे। तो जो फीडबैक है, आप जो काम कर रहे हैं बेसिकली उसका फीडबैक भी आप बड़ी आसानी से उसको आप ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई करना चाह रहा है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको हम कैसे शुरू करें, हाउ टू गो फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। मैंने जैसा बताया कि जो लैंडस्केप है वो चेंज हुआ है। सेकेंडली मैंने बताया कि आपको जो इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट होना चाहिए ई कॉमर्स का, वो कितना तेजी से हो रहा है। थर्ड में मैंने बताया कि आपको इसके एडवांटेजेस क्या है, ई कॉमर्स में जाने में आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। नाउ सबसे बड़ा सवाल है कि हम ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कैसे करें। क्या ई कॉमर्स बिजनेस आसान है, कोई भी इसको कर सकता है? आप आज अपना शुरू करें और 6 महीने में आप अपना बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं? मेरा कहना है कि ये इतना आसान नहीं है। जैसा हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस करना आसान नहीं है, उसी तरह इस बिजनेस के भी अपने चैलेंजेस हैं, अपनी डिफिकल्टीज हैं। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए आपको एक तो सबसे बड़ी चीज होती है एक माइंडसेट। कि उस माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा, कि उस माइंडसेट को आप कैसे चेंज करें और उसके हिसाब से आप अपना, क्योंकि कई लोगों से जो मिला हूं मैं, उनका एक जो है ना मेंटल ब्लॉक है। मेंटल ब्लॉक मैं आपको जस्ट एक छोटी सी, मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, बट छोटी सी मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, जो कि आप उस स्टोरी से आपको थोड़ा सा रिलेवेंट लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से कि एक छोटा सा गांव था, और उसमें एक एलिफेंट था। उस एलिफेंट का जो मालिक था, जो महंत थे, वो उसको दिन भर घुमाता था गांव में, और जो भी उसको खाने के लिए देते थे एलिफेंट को वो खाता था। और शाम को आके उस एलिफेंट को एक बड़ी पतली सी एक डोरी थी या रस्सी माने आप, उससे वो बांध देता था। तो ये सिलसिला काफी दिन तक चलता है। वो महंत दिन भर उस एलिफेंट को घुमाता है और शाम को जो है उसको एक छोटी सी पतली सी एक डोरी से या रस्सी से उसको बांध देता था। तो गांव के बच्चों को बड़ा एक क्यूरियोसिटी थी कि यार इतना बड़ा हाथी है ये, और एक छोटी सी इसको रस्सी से बांध रखा है। तो उन्होंने एक दिन उस महंत को पकड़ लिया और उसको बोला कि भाई एक चीज बताइए, आपकी इतना बड़ा आपके पास हाथी है, और उस हाथी को आपने पकड़ने के लिए बहुत छोटी सी रस्सी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये हाथी तो किसी भी दिन इस रस्सी को तोड़ के जो है वो भाग जाएगा। तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे, या आप उसको कैसे अपने पास बचा के रखेंगे, वो भाग नहीं जाए इसके लिए। तो महंत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई ऐसा है कि बच्चों, ये हाथी जो है ना, ये इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, भागने की तो दूर की बात है, ये कोशिश भी नहीं करेगा। तो बोला कि ऐसा क्या रीजन है कि कोशिश नहीं करेगा? तो महंत ने कहा साहब कि जब ये छोटा था, जब ये जन्मा था, जब बिल्कुल 2, 5, 10, 15 दिन, 25 दिन का था, तब मैंने इसको रस्सी से बांधा था। और उसने उस टाइम बहुत कोशिश की थी इस रस्सी से रस्सी को तोड़ने की, लेकिन उस टाइम इस हाथी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसमें
बच्चा था और उसने बहुत कोशिश करने के बाद भी इस रस्सी को नहीं तोड़ पाया और उसने 2-4-5 दिन उसका रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो गया। उसके बाद उसने उसका प्रयास करना ही छोड़ दिया। मतलब उसके बाद उसको ये मेंटल दिमाग में लग गया कि ये रस्सी जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग है और ये आज पूरा इतना बड़ा हो गया है, तो आज भी उसकी एक मेंटल ब्लॉक है कि ये रस्सी मेरे से नहीं टूट सकती है। तो जो मेंटल ब्लॉक उसका जो बच्चे का था, जब वो 15, 20, 25 दिन का था, तो जो मेंटल ब्लॉक उसके दिमाग में लग गया, उसके कारण उसने कोशिश करना छोड़ दिया। क्योंकि लेकिन अगर वो आज कोशिश करता तो हो सकता है कि उसको तोड़ पाता, लेकिन मेंटल ब्लॉक के कारण उस काम को वो नहीं कर पाता। तो सेम वे अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स बिजनेस की, तो कई लोगों के दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक ये है कि शायद उन्होंने आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले या 3 साल पहले कुछ कोशिश की होगी कि हमको ई कॉमर्स बिजनेस में जाना है और किसी कारण से उनको सक्सेसफुल नहीं मिला हो, सफलता नहीं मिली हो, तो उनके दिमाग में ये लग गया है कि इस बिजनेस में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लाइक ऑल अदर बिजनेसेस, दिस इज ऑल्सो नॉट दैट इजी। चैलेंजेस हर जगह है, आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और उस चीज को अडॉप्ट करना होगा, ये आपको देखना है। तो मैं अगर बात करूं कि बेसिकली ई कॉमर्स में आप कैसे एंटर कर सकते हैं, तो 2 ऑप्शंस अपने पास रहते हैं। और 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो है कि अपने पास ऑलरेडी कुछ मार्केट प्लेसेस के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इंडिया में, है ना। आप देखते हैं कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, मिंत्रा है, पेटीएम है, स्नैपडील है। इसके अलावा भी काफी ऐसे मार्केट प्लेस मॉडल्स हैं जहां पे आप अपना अकाउंट, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताता हूँ कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप जो है इन वेबसाइट्स पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली जो मार्केट प्लेस जो प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है, बड़ा एक सिंपल फॉर्मेट है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आपका एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए और आप अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और वहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट 1 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, इट डजंट मैटर। आप जितना चाहें आप उतने प्रोडक्ट्स आप जो है इन प्लेटफॉर्म्स पे आप कर सकते हैं। उसमें बेसिकली जो भी आपका सेल होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो उसमें कुछ कमीशंस जो है आपको इन प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है। कमीशन हो सकता है 15% हो, 20% हो, 22% हो, 18% हो। इट वेरीज फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। अमेजोन पे हो सकता है डिफरेंट हो, फ्लिपकार्ट में हो सकता है डिफरेंट हो, पेटीएम में हो डिफरेंट हो, लेकिन जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली वो सबका सेम है मोर और लेस। वहां पे आप अपना लिस्टिंग करिए और आपको जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके लिए आपके पास एक पैनल होता है। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट सेल हुआ है, इस कस्टमर को ये भेजना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, जितना भी क्वांटिटी है वहां पे सेल करना है और उसको आपको डिस्पैच करना होता है। सिस्टम इनका बहुत एफिशिएंट है। बेसिकली जो भी आपको ऑर्डर आता है आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आपको 2 या 3 दिन में जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन आपकी लगाई है उसके हिसाब से आप उतने दिनों में आपको ये जो है डिस्पैच करना होता है। और वो कस्टमर के पास जाने के बाद एक साइकिल रहता है इनका कि 15 डेज या 10 डेज का जो भी एक साइकिल है, विद इन दैट साइकिल आपको उनका पेमेंट मिल जाता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। जो भी इनका कमीशन होता है 15%, 20%, वो आप काट के आप उनको भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली एक आसान तरीका है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव है, तो ये एक थोड़ा सा आसान तरीका है जिसके थ्रू आप इस बिजनेस को बेसिकली समझ सकते हो कि बेसिकली ये क्या है और किस टाइप से हमको काम करना है। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका योर ओन ई कॉमर्स स्टोर। पहला वाला जो मैंने बताया जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो कि एक मार्केट प्लेस मॉडल बोलते हैं, वो एक इजी प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आप अपना बिजनेस जल्दी शुरू कर सकते हैं।
और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे कई लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती है जो इस बिजनेस पे आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग बिजनेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। काफी अच्छे लेवल पे बिजनेस वो कर रहे हैं। वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे हैं, वो खुद ट्रेडर हैं, बट एक इतना एफिशिएंट सिस्टम उन्होंने अपना डेवलप कर लिया है, एक इतना उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो कर लिया है, इवॉल्व कर लिया है कि उनके लिए ये सारे प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं और काफी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। सेकंड बेसिकली आप देखते हैं जो ऑप्शन है वो इट इज योर ओन वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर, जिसमें अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आपको लगता है कि कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ लगता है कि आप सोर्सिंग कर रहे हैं, 20, 25, 50, 100 प्रोडक्ट्स अगर आपके पास हैं, तो आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट आप चला सकते हैं। और उस वेबसाइट को आप डेवलप करके, उस वेबसाइट का प्रमोशन करके, उसमें काफी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या काफी डिफरेंट जो है उसमें रहते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को भी बना के, उस वेबसाइट का प्रमोशन करके, उसको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के, उसका पेमेंट गेटवे बना के आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। जो सेकंड जो मैं आपको बोल रहा हूं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपकी खुद का वेबसाइट का प्रमोशन करना, क्योंकि ये आपने वेबसाइट बना ली, आपकी कितनी ही अच्छी वेबसाइट हो, जब तक लोगों को नहीं पहुंचेगी, जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, तो हो सकता है कि उनको ये आइडिया नहीं रहेगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है। तो उसकी मार्केटिंग करना भी एक बड़ा चैलेंजिंग होता है, उसके लिए भी काफी कुछ आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह काफी हो जाते हैं। बट आप पैरेलली दोनों एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे बड़ा अगर मैं देखूं तो आप इनिशियली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, आप इन प्लेटफॉर्म्स को पे आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको लग जाएगा कि भाई किस टाइप के प्रोडक्ट्स मेरे ज्यादा सेल हो रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स में ज्यादा मार्जिन ले पा रहा हूं, और आप पैरेलली अपनी वेबसाइट भी बना के उस वेबसाइट को आप प्रमोट करना शुरू कर दें। तो एक बेसिकली आप देख सकते हैं कि दोनों का एक मिक्सचर हो जाएगा। एक मतलब एक जो मार्केट प्लेसेस वाले जो वेबसाइट है, वहां पे आपका जो बिजनेसेस है वहां पे जल्दी रेस्पॉन्स आएगा, और उस रेस्पॉन्स, उस फीडबैक के बेसिस पे आप अपना खुद का एक स्टोर, आप जो ई कॉमर्स स्टोर है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये अगेन इसमें भी आपको बहुत कुछ इनपुट लगेगा, बहुत कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बट अगेन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप चाहेंगे, अगर आपने अपना जो मेंटल ब्लॉक है उसको खोल दिया है कि हाँ हमको इस फील्ड में जाना है, क्योंकि आपका दिल करे या नहीं करे, या आपका मन करे नहीं करे, लेकिन फिर भी आपके पास इन फ्यूचर देयर विल बी नो ऑप्शन, आपको इसमें जाना ही होगा। आप आज जाएंगे या 2 साल बाद जाएंगे या 5 साल बाद जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू विल हैव टू गो फॉर द डिजिटल प्लेस। आपको इंटरनेट प्लेस पे जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहने वाला है, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको सर्वाइव करना है। और इसके साथ साथ मैं जो एक अगर आपके पास ऑलरेडी, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई शॉप है, आप कोई ग्रोसरी का काम कर रहे हैं, आप कोई साड़ी का काम कर रहे हैं, आप कोई अपैरल का काम कर रहे हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फिजिकल शॉप है, तो पैरेलली आप अपना बिजनेस उसको डिजिटल पे भी आप ले जा सकते हैं। आप अपना एक वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं, और उसमें आपके लिए बड़ा एक आसान ये रहेगा कि आप ऑलरेडी फिजिकल आपके पास स्टोर है और आप डिजिटल भी कोई ऑर्डर आ रहा है, तो आप उसको आसानी से जो है उसको आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और इन फ्यूचर आपके पास जो है फिजिकल के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं फिजिटल, और उसका भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कोप जो है बढ़ने वाला है। और कई लोग जो है उन्होंने दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिस, कि जिनके पास अपना एक आउटलेट है, उसके साथ साथ वो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी वो अपना प्रमोशन शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट, मैंने आपको बड़ा ब्रीफली बताया है, बट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके कुछ क्वेरीज होगी, तो डेफिनेटली इस सेशन के बाद मैं उन क्वेरीज को भी लेने का प्रयास करूंगा। सो अब बात आती है कि कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सूटेबल रहेंगे इस ई कॉमर्स के लिए। तो अगर मैं एक
लाइन में बात करूं तो एनी प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आपके पास में है वो सब ई कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल है। उसको आप ई कॉमर्स पे आप अपना सेल कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर आप टॉप 15 कैटेगरी की बात करूं जो कि मैक्सिमम चलती है, जो कि मैक्सिमम जिन जिन कैटेगरी में सेल होता है, तो आप देख सकते हैं तो ग्रोसरी है। ग्रोसरी में बहुत बड़ा स्कोप है, काफी प्लेयर्स ऑलरेडी इस बिजनेस में आ गए हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि जियो जो रिलायंस रिटेल है वो काफी बहुत बड़ी तेजी से जो है इस फील्ड में उतर रहा है, और उसका ये दावा है कि वो 2 घंटे में जो है अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल पे आने वाला है। फार्मा एंड मेडिसिन, जैसे मैंने बताया 1 mg इसी फील्ड में है, लेकिन इसके अलावा भी काफी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी इसमें काम कर रही है। फार्मा और मेडिसिन पे एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कि ई कॉमर्स का, क्योंकि कई बार क्या होता है साहब की लाइक किसी के पेरेंट्स जो है एजेड हैं, वो नहीं जा सकते हैं बाहर कोई मेडिसिन खरीदने, तो उस केस में जो है वो ऑनलाइन जो है खरीद सकते हैं। थर्ड पार्टी की डिलीवरी हो सकती है कि सपोज बेटा कहीं है और है, उसको डिलीवरी करवानी है अपने 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 पेरेंट्स के लिए मेडिसिन की, तो वो एक ऑप्शन होता है। तो ये एक फार्मा एंड मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाइट गुड्स, एनीथिंग, आज की तारीख में फ्रीज भी बिक रहा है और वॉशिंग मशीन भी बिक रही है और डिश वॉशर भी बिक रहा है। एवरीथिंग इज लाइक सेलिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाइट गुड्स में काफी है। मोबाइल्स सबसे बड़ी कैटेगरी है मोबाइल्स में, जहाँ पे कि ऑनलाइन सेल हो रही है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं मैं तो बीच में देखता था कि जब वो फ्लैश सेल लगती थी तो विद इन फ्यू सेकेंड वो लाखों मोबाइल बिक जाते थे। सो मोबाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरीज इन ऑनलाइन बिजनेस। अपैरल, कपड़े और साड़ी और टी शर्ट और शर्ट्स, अपैरल्स भी जो है बहुत बड़ा स्कोप है। फैशन ज्वेलरी, जो कम रेंज की ज्वेलरी है, उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। होम डेकोर प्रोडक्ट्स, गिफ्ट्स एंड कलेक्टिबल्स, टॉयज एंड गेम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्पेयर पार्ट फॉर ऑटोमोबाइल। आज की तारीख में ऑटोमोबाइल के लिए जो स्पेयर पार्ट की जरूरत होती है उसका भी एक बहुत बड़ा जो है ऑनलाइन मार्केट डेवलप हो रहा है। बुक्स एंड स्टेशनरी, काफी टाइम से चल रहा था बुक्स एंड स्टेशनरी, बट अभी भी जो है बुक्स एंड स्टेशनरी का मार्केट, ऑनलाइन मार्केट काफी ग्रो कर रहा है। मोबाइल एक्सेसरीज, आप देखते हैं कि मोबाइल एक्सेसरीज का इतना बड़ा मार्केट है, वो कवर भी चाहिए और आपको सो मेनी अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ईयरफोन्स हैं, ये है वो, काफी प्रोडक्ट्स जो है वो मोबाइल एक्सेसरीज में अवेलेबल है, तो उसका भी एक मार्केट है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स, तो बेसिकली ये एक मैंने ओवरव्यू बताया है जो रिसर्च के हिसाब से जो इंडिया में सबसे ज्यादा जिनका सेल होता है ऑनलाइन, तो उसका ये मैंने कुछ आपको डिटेल्स दी है। आप किस बिजनेस में है मुझे नहीं मालूम है, या आप इनमें एंटर करना चाहते हैं, तो ये जो सेक्टर्स है वो काफी अट्रैक्टिव है। अब बात आती है कि सब तो मैंने आपको अच्छा बता दिया है कि हमको जाना है और ई कॉमर्स का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन स्कोप के साथ साथ जैसा मेरा कहना है कि चैलेंजेस भी हर बिजनेस में रहते हैं, तो इसमें भी काफी चैलेंजेस हैं। इसकी एंट्री में भी बहुत कुछ हमको देखना पड़ता है, बहुत कुछ पॉइंट्स को हमको कवर करना होता है। तो एक जो मेजर चैलेंज है वो है प्राइस इज द मेन फैक्टर, क्योंकि सब कुछ कस्टमर के पास सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उसको दिख रहा है, तो वो ही विल गो फॉर द जहां पे सबसे सस्ता उसको मिल रहा है वो वहीं से परचेज करेगा। तो प्राइस जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है ई कॉमर्स परचेजिंग में। ई कॉमर्स के जो भी सेलर्स हैं, बहुत कंपटीशन है, तो आपको ये देखना है कि आप अपने ओवरहेड्स को कैसे कम कर सकते हैं। आप अगर ट्रेडिंग में हैं तो आप अपनी सोर्सिंग में कैसे उसको कम कर सकते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं तो अपनी कॉस्टिंग कैसे कम कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर आपको अपनी ब्रांड का 5%, 7%, 8% एक्स्ट्रा दे देगा, इसके ऊपर वो नहीं देगा, तो वो आपको देखना है। सेकंड जो चैलेंज है वो है प्रोडक्ट रिटर्न्स। प्रोडक्ट रिटर्न्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है। मैं अगर अपैरल्स या कपड़े की बात करूं तो वहां पे तो इतने ज्यादा रिटर्न्स होते हैं कि जो सेलर्स है उसको लगता है कि इस पे काम करें या नहीं करें।
क्योंकि जनरली क्या होता है कि लाइक एक सीओडी की फैसिलिटी होती है, एक कस्टमर रिटर्न की, जो प्रोडक्ट रिटर्न है उसकी एक आपके पास फैसिलिटी होती है। तो कस्टमर सपोज उसको चाहिए एक शर्ट, वो 7-8 शर्ट का जो है ऑर्डर दे देता है, वो 7-8 शर्ट उसको मिल जाते हैं। उसके बाद वो जो भी पॉलिसी है आपका 10 दिन रिटर्न में है या 15 डे रिटर्न का है या 30 डे रिटर्न का है, तो वो बेसिकली एक शर्ट रखेगा या कभी एक शर्ट भी नहीं रखेगा और सारा के सारा जो है वो रिटर्न कर देता है। कई बार तो ये होता है कि वो उन कपड़ों को पहन भी लेता है, अपना कोई फंक्शन है तो वो भी अटेंड कर लेता है और उसको वापस जो है रिटर्न कर देता है सप्लायर, जो जो सेलर है उसको। तो वो एक बहुत बड़ा एक नुकसान उसके लिए है जो भी ई कॉमर्स पे काम कर रहा है, क्योंकि एक तो जो प्रोडक्ट है वो भी खराब हो जाता है, कई बार वो फट जाता है, कई बार उसका जो है जो भी स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो प्रोडक्ट रिटर्न्स का जो है वो एक प्रॉब्लम है। और आप मानिए करीब करीब 9 to 10% जो है वो कस्टमर रिटर्न आता है। और अगर इससे ज्यादा अगर रिटर्न आ रहा है तो वायबल है ही नहीं। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करें उसका डिस्क्रिप्शन बहुत प्रॉपर हो, उसमें आप क्या देने वाले हैं, क्या डायमेंशन है, क्या उसके एडवांटेजेस, सारे जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि कस्टमर जो उसको परचेज कर रहा है उसको मालूम रहे कि मैं क्या चीज खरीद रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि अगर अमेजोन पे हर कोई सक्सेसफुल होता तो आज की तारीख पे सारे लोग उसी पे अपना बिजनेस करते, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको बहुत फैक्टर्स देखने पड़ेंगे अगर अपना कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। फिर एक डेटा एंड सिक्योरिटी ब्रीच का भी एक प्रॉब्लम रहता है। कई बार जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं वो सेफ नहीं होते हैं और आपके जो फंड है वो कई बार डाइवर्ट हो जाता है या कहीं ब्रीच हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। कस्टमर एजिलिटी, कस्टमर जैसा मैंने आपको कहा कि जहाँ पे सबसे सस्ता मिल रहा है, कोई लॉयल्टी नहीं है उनकी। जहाँ पे सस्ता मिल रहा है, जहाँ पे उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, वहीं पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जो पहले ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड इक्विटी हुआ करते थे, लॉयल्टी हुआ करती थी कि साहब हमको इसी ब्रांड का लेना है या हमको इसी शोरूम से कपड़ा खरीदना है, अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं। तो अब वो आज के जमाने में ऐसी कोई चीज नहीं रही है और लॉयल्टी जो है कस्टमर का नहीं रहा है। वो तो चाहे आप उसको कितना ही पैम्पर करें, कितना ही आप उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करें, लेकिन एवरीबडी स्मार्ट, और वो जहाँ पे उसको सबसे सस्ता मिलेगा वो वहां पे जाके उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। और जैसा मैंने लास्ट मैंने स्टोरी में बताया था कि मेंटल ब्लॉक, जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं, जो लोग सॉरी, तो वो एक अपना जो मेंटल ब्लॉक है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। एक ओपन माइंड से आप जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी आपके पास, आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। उन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको अपना नेक्स्ट डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है। तो जैसा मैंने कहा कि वेदर टू गो फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस बड़ा सवाल है। इसका आंसर आसान नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है कि आपके पास नहीं जाने का ऑप्शन लिमिटेड है। आपको आज नहीं तो आज से 5 साल बाद इस डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि अगर आप जैसा बिल गेट्स ने कहा कि अगर आप डिजिटल नहीं है तो आपका बिजनेस में सर्वाइवल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये मैं कोई आपको कोई मैं डराने के लिए या कोई ये मैं आपको उस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनरेशन जेड की बात करें या जो मिलेनियम चाइल्ड है जो 2000 के बाद में जो जन्मे हैं, वो कोई पिंपरी मार्केट में जाके या कोई दिल्ली के सदर बाजार में जाके वो अपना प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। वो अपने घर में कंफर्ट में एसी के नीचे अपने मोबाइल के ऊपर ही उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, चाहे वो चेन्नई में बिक रहा हो, बेंगलोर में बिक रहा हो या दिल्ली में बिक रहा है। they would like to have their purchasing on the online model, on mobile or on the laptop or any other devices. So नहीं जाने के options कम हैं।
और but again I can tell you कि there is immense potential की कोई कमी नहीं है, बिजनेस डेफिनेटली है, लेकिन जैसा मैंने बोला आपको डिसिप्लिन चाहिएगा, आपको कंसिस्टेंसी चाहिएगी, आपको पेशेंस चाहिएगा, आपको मेहनत करना होगा, then I don't think it is very difficult to enter into this market. Sky is the limit. आपको फर्स्ट कदम, जो फर्स्ट स्टेप है, वो इस डायरेक्शन में उठाना होगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जो मैंने तैयार किया है। हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो, आई डोंट नो वेदर जो आपके मन में क्वेश्चन थे उनका जवाब मैं दे पाया नहीं दे पाया, बट ये मेरी कोशिश थी। और जो एक्सपीरियंस या जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज मेरे पास थे, मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश किया। वी कनेक्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, यहाँ पे आपकी ऑडियंस के साथ मेरा इंटरेक्शन कराने की आपने जो इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी एंड टीम, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म को बना के, और डेफिनेटली with the help of each other this platform will grow and your business will grow. All the best from my side. थैंक यू। और आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विसर्जन का दिन है, और डेफिनेटली कई लोगों ने अपने घर पे या अपने सोसाइटी में विसर्जन का काम किया होगा। सो गणपति बापा की विशेष हम लोगों पे रहे, यही आशा है। हम इस कोविड से बाहर आए, जो प्रॉब्लम हो रही है इससे बाहर आए, और वापस उसी तरीके से अपना रूटीन लाइफ चलाए जो हम पहले चलाया करते थे। सो थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आई विल लुक इनटू दिस चैट बॉक्स, और उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Any question? आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और जो भी है मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर दूं। और अगर कोई फीडबैक है आपका, आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। I think Nitish ji, you have taken a great session. जो भी आपने कहा, आई थिंक दिस शुड हेल्प टू एवरीवन। और एक ही चीज है जो आपने बहुत अच्छे से समझाई, माइंडसेट, जो कि एग्जांपल आपने दिया, वो बहुत जरूरी है आज के डेट में। इफ यू डोंट चेंज योर माइंडसेट देन इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव इटसेल्फ। तो हमें रोजी रोटी का ही क्वेश्चन मार्क आ सकता है अगर हम अपने माइंडसेट को ना चेंज करें तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट सेशन। थैंक यू जितेश जी। और वही है, माइंडसेट का ही गेम है साहब, माइंडसेट चेंज होगा तभी काम चलेगा। यस। Yeah, I would like to ask something. Yes sir. Yes, very nice, Mr. Kataria. Definitely, it was a very insightful seminar. Thank you very much for that. My question is, how can we indulge this real estate business? See, e-commerce, I understand. No, there are so many other products and services which are available, but if you will see, the real estate market is still, is lacking a lot as far as accepting or adapting the online platform. Today, if you will see, mostly the business is going on website, on WhatsApp. Okay, no doubt there are some online players like 99 Acres and Magic Brick, and so few more sites are there. Correct. But when it comes to interacting with on the online platforms versus the brokers, see, even today 70-80% of
business is happening through brokers only. Be it a Correct. commercial, be it a residential, be it a land dealing, what it may be. But still, so how can we get our real estate business into online platform, and how can we get benefit out of it? Correct, sir. Very relevant question from your side. सर जैसा मेरा मानना है कि every business like takes some time for the evolution, है ना? मतलब कोई बिजनेस जल्दी इवोल्यूट हो जाता है, किसी बिजनेस को इवोल्व होने में काफी टाइम लग जाता है। जैसा आपने बताया 99 एकड़ है, और दूसरे जो है आपके ब्रोकर, दे आर जस्ट डूइंग लाइक दे आर ब्रोकरेज लाइक प्लेटफॉर्म, एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, नॉट द एंड कस्टमर और एंड जो आपका जो बिल्डर है या जो प्रॉपर्टी जिसने बनाया है उसको एडवांटेज नहीं मिल रहा है। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में देयर विल बी सी चेंज इन दिस सेक्टर आल्सो, क्योंकि No. I'm Yes. not saying that, sir. Kataria, sir. Yes, See, sir. Builders, they are using technology at its best to get the maximum out of the construction. Right, sir. Online players like 99 acre, Magic Brick, with the use of technology, they are able to do their business. I'm talking about a layman broker like me, you, me, or any other player who is there on platform on this seminar. Right. Okay. Maximum what I'll be having is I'll be having a website of my own, or but it is not sufficient enough to Right. take myself at a larger scale, at a bigger scale. Right. So today we are on this seminar because of WeConnect. Right. I would like to thank Mr. Chetan Kataria. I know him from couple of months, and that too also because of the WhatsApp platform. Right. Right. But now because of this WhatsApp, we are able to connect together now. But still we are doing at an individual level. Right. How can I, let's say for example, my company, if I talk about Real Venture, I deal in hotels, resorts, lands, commercials, and even residentials for second homes. Okay. So how can I create my own brand wherein I can use online platform, attract maximum people, and growing business is not the only concern. Providing them the end-to-end solutions so that Right. they can have a trust on the broker. Today I am a layman broker, but I want to enhance myself to a consultant. Today I am a CP. I am working at I started with broker. Now I have reached to a CP level, wherein I am associated with good builders, with some good consultants. But still it is not satisfactory. I want to grow to a company level, to a Right. professional organization. Right. So how this technology can help me? Sir, as you told that you want to work as a consultant, basically you want to provide some solutions to your end customers. And as I told you, it is not an like short term this thing. It is a long term process basically. Okay. You have to create your brand. You have to create your credibility basically. That is more important in the business of like real estate. Credibility is very important, and to build this credibility it takes time. Okay, so that can be done offline, that can be done online. It is not that only online platform will be sufficient. It will be having 360-degree approach. Okay, so online plus offline plus what kind of services you are providing, whether it is like things are moving from customer satisfaction to customer delight basically. Okay, sir. So in that case, so many things can be done. You have to create your own like branding, and you have to create your own identity, credibility. So these all factors will go into that. Sir, online
alone will not do anything. Okay, there are so many factors. It is how what kind of services you are providing, how what is the level of your services, whether customers are satisfied or not, whether you are getting the referral marketing from your clients or your customers or not. So there are more things like engaged, more things are there in this business. So what I was telling, that few of the businesses can generate business in short time, in 6 months or 8 months or 1 year, and in few of the businesses it may require more time to generate the customers loyalty. So we can discuss it offline also. We can we are already having this type of clients with us, and they are working on that platform. So I think it will require more time to discuss this question, sir. Thank you, Mr. Kataria. Thank you. Yeah, you have my number. We can discuss it offline also, not a problem, sir. Thank you very much. What's your name, sir? And you are based in Pune? Yes, I'm based in Pune, Kirtik Patel. Great, sir. Great, sir. So nice of you. Nice. My pleasure to meet you as well, Mr. Kataria. So nice of you, sir. So nice of you. Any Thank other you. question? Siddharth, Vijay, Chumani, Ankur. Any question from anyone? Dipali ji, thank you very much. I think Dipali ji is in the business of flowers. I was just checking your chat message. Sir, chocolates, bouquets, and Chocolates. gifting. Okay, you are based in Pune. Great. Yes, sir. Thank you. And if everyone can share your number and your name and number, then we'll aid in this WeConnect group also, if you are not there in that group. Chetanji? Since there are no more questions, I would like to request Mr. Sujay Bagmar, our today's sponsor, to please tell us more about Jaipal Furniture. Hello everyone, thank you so much for the opportunity. Team WeConnect and Mr. Chetanji Kataria. It's a beautiful platform actually to present my business. Keeping it short, let's just move ahead. I'll share my screen. Host, can you just enable the option for screen sharing? इसमें किधर है? Yes, thank you. So, hello everyone, I'm Sujay. I'm the third generation in the business now. We are a 3-decade-old company. Jaipal is serving exclusive furniture for almost every requirement for your office needs for the past 30 years. We are dealers and distributors for Godrej Interior, Godrej Security Solutions, and Supreme Plastic Furniture. Moving ahead, I would just like to give you a small glimpse of our showroom. I hope you can see the video. Yes, sir. So these are all the products we deal in.
We have imported chairs, locally assembled chairs. We have chairs under our own brand. All of these are ergonomically designed. Looking at the current times, we have curated a special catalog for work from home. So if you have any colleagues, your teammates, anyone who requires these products, do let us know. We are located opposite Shaniwar Wada. We have the widest variety of chairs in the market, and we are making it sure that we are providing all made in Make in India products. As you can see, all these are under Jaipal brand, and all of these are made in India. We are one of the distributors and dealers for Godrej Interior as well. Along with these, we have office recliners and beautiful products from Supreme. Yes, that's it from my side. Thank you so much. Thanks for giving your time. Thank you. Thank you. Wow, this was a very insightful session, full of knowledge, facts, and straight to the point. Thank you so much to Mr. Nitesh Kataria for taking out time and taking this session. I learned a lot of things from it today. Like e-commerce is definitely a platform which will help us flourish our business, and the importance of adapting skills. As they say, survival of the fittest. And I totally agree with you that change is the only constant. I would once again like to thank Jaipal Furniture and Mr. Sujay Bagmar for sponsoring us today. I would also like to thank all the participants who joined us today and took the benefit of today's webinar. Thank you to each and every member who joined us today. Thank you. Thank you, everyone. Thanks everyone. Thank you.